उसमें धारा 94 लगता है। नहीं सर, ये वी आर अ हाउसिंग सोसाइटी। कोई से भी हो, मुझे तो धारा 64 में कहा, धारा 64 में ये डिस्प्यूट कवर होता है क्या? जब धारा 64 में डिस्प्यूट कवर होगा तब नोटिस जाएगा, और जब धारा 64 में ये डिस्प्यूट आएगा जी सर। तो नोटिस की जरूरत होगी। अब धारा 64 का यदि डिस्प्यूट नहीं है तो नोटिस की जरूरत नहीं होगी। जी सर। ये इट विल बी नाउ एंड देन इट विल बी ए मैटर, देन इट विल बी ए मैटर ऑफ एविडेंस कि धारा 64 में आएगा कि नहीं आएगा। जी सर। सर आई वाज ओनली रिलाइंग ऑन द डिवीजन बेंच जजमेंट ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। हाँ, ये सर एक this is ILR 2013 MP 2832. Here there was a cooperative housing society just like me, and there was a suit filed alleging encroachment by the society over the land. And here as well the dispute pertains to the land. क्या है, कौन सा पैरा रिलाई कर रहे हो बताइए? हाँ सर, मैं मलॉर्ड में काइंडली सी पैरा 4। पैरा 4 में फैक्ट्स थोड़ा सा आया है इसमें कि it is an undisputed position between the parties that the impugned suit for declaration and perpetual injunction was filed by the applicants and respondent number 3 herein in the trial court without serving any statutory notice under section 94 of the act. And it is also undisputed position that in the relief clause of the plaint, some prayer is also made against the respondent number 2 registered cooperative society. It is also undisputed position between the parties that the respondent number 2 society is a registered housing society, and the allegation is made against the society that it is trespassing on the land of the present applicant and respondent number 3 to 5. Then, my lord, the 94 section is there. Then 5 says, in the aforesaid section, it is mandatory provision that no suit shall be instituted against a society or any of its officers in respect. मैडम, Sir. Any officers in respect of any act touching the constitution, management, or business of the society. मेरा कहना है कि I am being a housing society, I am in the business of sir purchase and sale of land and doing construction or selling it to my members. So land से dispute है. The dispute is that the plaintiff says that the land on which has been purchased by me by respondent numbers 2 and 3, वो इनको possession उसका दे दिया जाए. Where is the plant? Plant is P1 sir. Page number is 10 sir. 11 to be more precise. इसमें सर रिलीफ क्लॉज देख लिया जाए, वो भी पर्याप्त रहेगा. दैट इज ऑन पेज नंबर. यू आर ताज गृह निर्माण. हाँ सर, ताज गृह पेज नंबर 19 पे रिलीफ क्लॉज है. उसमें लिखा है कि आई एम प्रतिवादी क्रमांक 4. मैं प्रतिवादी क्रमांक 4 हूँ सर इसमें. और इसमें लिखा है मैं पेज नंबर 19 पढ़ रहा हूँ जहाँ अनुतोष का जो पद है उसमें लिखा है कि स्वयं सो ग्राम पीपलनेर की कृषि भूमि स्वयं सो पर से प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 व 4 आई एम 4 को अधिपत्य हटाकर वादी को अधिपत्य दिलाया जाए, क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 4 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र वादी के विरुद्ध अकृत एवं शून्यवत है. They are claiming a relief against me in respect of something which constitutes. बताइए कि whether this sale deed can be declared void by the registered society. नहीं सर, इन्होंने रिलीफ भी मांगा है. सोसाइटी ये बोल रहे हैं पोजीशन दिलाया जाए क्योंकि by the जो भी ट्रिब्यूनल है आपका, whether that can be done, whether the relief for declaring the sale deed null and void can be granted by the कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी. मतलब सेल डीड तो खैर, बट यहाँ पर सेल डीड को उन्होंने मांगा नहीं है कि इट शुड बी. वो बोल रहे हैं कि क्योंकि सेल डीड जो है वो शून्य है इसलिए इनको कब्जा दिलाया जाए. दे आर नॉट सीकिंग द रिलीफ ऑफ डिक्लेरेशन. हाँ, तो कब्जा दिलाने की रिलीफ दिला सकता है. कब्जा दिलाने की रिलीफ क्या वो दिला सकता है आपका 64 के हिसाब से. In fact, but in this case, which I am relying on the division bench judgment, my lord, here there was an issue of encroachment. उसके अंदर पूरे जो है रिव्यू का ऑर्डर है और उसके अंदर पूरे फैक्ट सामने नहीं आ पा रहे हैं. उसका भी देखा जी सर, डिवीजन बेंच वाला. जी सर.
क्यों, इस पर बताइए कि आपने क्या लीगल पोजीशन देखी है? मैं लीगल पोजीशन बता सेक्शन 94 जो डेफिनेशन में 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. नोटिस नेसेसरी सूट, नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द सोसाइटी or any of its officer in respect of any act touching the constitution, management or business society. ये जो 3 words हैं that has been defined in the section 64. 64 is the dispute which is just like a suit in the civil suit. Registrar will hear the suit. For that notice is necessary. Now we cannot come in the category of 64 dispute because What do you say about this judgment? para 5 आपने देखा है, यहाँ देखना शुरू करेंगे आप? नहीं सफिक में यूज मेंशन सफिक क्या है सर? सफिक वाले मैटर में भी वर्ड जो इंटर पैरा 5 में होगा सर. मैं जस्ट राइट दिस. नहीं, this suit was also for declaration and injunction, and in this suit also no notice was served. अब तो इसके अंदर उन्होंने रिलीफ भी बदल दी है. अब तो ये कह रहे हैं केवल इनको चूंकि स्वामी है ये डिक्लेयर किया जावे केवल, और ये वो प्राप्त करने के अधिकारी हैं जो लैंड एक्वायर हो गई है. देखिए, इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित की जावे कि उपरोक्त बाधित भूमि का बाद लंबन काल में भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल द्वारा अधिग्रहण कर कब्जा प्रदान किए जाने के फलस्वरूप भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा बाधित भूमि के अधिग्रहण के एवज में देव विकसित भूखंड एवं समस्त लाभों को बाधित भूमि का भूमि स्वामी होने के कारण प्राप्त करने का अधिकारी है. ये घोषणा की जाए कि वो जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम बीडीए है, प्लॉट्स भी लैंड भी फर्स्ट सील्ड हमारी, ये फलस्वरूप कब्जा प्राप्त करने, ओरिजिनल प्रेयर उसी कब्जे की है. बोला एज अ consequence of obtaining the possession, he would also be entitled to the financial benefits flowing therefrom. मिस्टर बताइए अंकित, ये इस जजमेंट का क्या करना है साफिक का? सर उसका पैरा 2 में 2 जजमेंट सब वो मुझे लाने पड़ेंगे. उसमें सुप्रीम कोर्ट पैरा 2 लाने पड़ेंगे मतलब क्या भारी ज्यादा मोटी किताबें हैं वो? नहीं मुझे सर एड्रेस करना पड़ेगा. मैं टाइम ले रहा हूं सर इसमें. ये आपने टाइम क्यों नहीं मांगा शुरू में? आपने अभी जस्ट प्रोवाइड किया, मैंने देखा पैरा 2 में ये रिव्यू का ऑर्डर. आपको इनकी 7/11 की बहस करोगे कि नहीं करोगे? मेरा सर ये था 64 में केवल आप इंटरप्रिटेशन इन 64 और 94 के करके सेटिस्फाइड हैं? ठीक है, मैं हट कर लेता हूँ. If you are satisfied कि जो आप बोलते हो नहीं काफी है. मैं थोड़ी बोल रहा हूँ इस पे तो आपको तैयारी से अपनी आना चाहिए. इनकी ये तैयारी है, ILR 2013 की तैयारी इनकी है. अब अपनी तैयारी, आपको केवल एक्ट पढ़ना है तो पढ़ते रहो एक्ट जिंदगी भर. आपको लगता है जितने भी जजमेंट्स आते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी नजर में? आप मालूम नहीं, मैं एक जजमेंट मैं दे दूंगा सर. दे दूंगा मत बोला करिए मेरे से. आप टाइम मुझे मत बोला करिए दे दूंगा. दे रहा हूँ सर, मैं अभी दे रहा हूँ भी मत बोला करिए. पहले आप सर्च किया करिए अपने पक्ष में, जो है आप बहस किया करिए. आप लोग ऐसा बोलते हो दे दूंगा ले दूंगा, मैं नहीं निकाल सकता कि जजमेंट मुझे चाहिए होगा. या मैं तो इसको लगा के आपको दावा खारिज कर देता हूँ. आप देते रहे जजमेंट दी भी तरीका थोड़ी होता है. आप लोग जो इतने पुराने केसेस में खाली हाथ चले जाते हो, यहाँ के बोलो दे दूंगा. आप दे तो कौन दे सकता है? जिसपे होगा वो दे सकता है. एक ऐसा व्यक्ति जो खुद जो है अकिंचन है, वो क्या दे सकता है दूसरे को? एज ऑफ नाउ यू आर अकिंचन और आप मेरे से बोलो दे दूंगा. दान वही तो कर सकता है, किसी को कुछ वही तो दे सकता है जिसपे हो. तो ये सेंटेंस यहाँ खड़े होकर वकील बोलते हैं कि मैं दे दूंगा, ले आऊंगा, कल ला दूंगा. ये सेंटेंस गलत है. यू शुड बी इन पोजीशन ऑफ ऑल दी रिलेवेंट लीगल पोजीशन व्हिच इज हेल्पिंग यू. या फिर बोला आज नहीं है सर, मुझे सर्च करने को समय दे दो. आप बोलते हो मैं दे दूंगा, ले आऊंगा, ला दूंगा. ऐसा लगता है कि आप पे भंडार भरा हुआ रखा था धारा 94 और धारा 64 के इंटरप्रिटेशन का. आप उसको घर पर जो है रखे आएगी, देखेंगे, ले आएंगे जब इच्छा होगी. आप लेकर आना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए. आप लोगों से उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करें बताइए?